Right, let's just. Right, so yes, I am recording it. Okay, done. Can everybody see the screen? Let me know. Yes, Okay, yes. let's kick off the session now. Okay, hello, everybody. How's the day going? I hope it is good. You're learning and you're being disciplined in the 2023 because it's the most important thing that you can ever imagine. Being disciplined a whole year. Okay, let's start with the Bitcoin. Most of you are fearing this level, so let's see where we are, where we want to go. Let's see everything. Okay, let's do a top to bottom analysis on Bitcoin, Ethereum, and everything. I'll be less active after that because I'll be studying the books from now on, because after this CPI I don't think so market will do any good. It will just something like this and then goes to zero. Okay, let's see first, where we are, what are the setups that I'll be trading. First of all, I shared 2 to 3 setups yesterday, and I have been, following these setups a lot. So first, let's see 4 hour time frame पे अगर अपन देखें, बैकग्राउंड सॉन्ग अच्छा है. बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा? पीछे से कोई आवाज़ आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। वो नेज के था, मेरे नहीं था. अरे मेरे नहीं है भाई, मेरे यहाँ कोई नहीं है। बस वाला साउंड कह रहा है। हाँ, वो नेज के ही था. अरे बस आ ही नहीं सकती अरे यहाँ पर. तो मेरे यहाँ कहाँ आएगी, मेरे घर पे चढ़ा रहे। ओके, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस मूव एंड व्हाई दिस मूव केम हियर. सो अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, if you are following cryptos and following the how this thing works is this was the build up. ये भी एक मीटिंग से पहले का बिल्डअप था, एंड दिस वाज द क्रैश दैट वी वेंट इनटू. ठीक है, तो हर बार एक चीज़ नहीं होगी. तो वी आर स्टिल एट अ की रेजिस्टेंस. If you talk about this range, okay, these are range highs, range lows. If you talk about this range, this is the most important resistance, and we came here 3 times. All of these 2 times, and जैसा अपन को 2 बार में रिजेक्शन मिला है, it is a good resistance area according to me. Correct. Everything that I say is just my view of the market. Okay. Second thing. Now let's see what are the confluences of being bullish and what are the confluences of being bearish. Okay, we are just traders. We don't even fucking care what is macroeconomics, where we are not. Because overall, yes, I know everything is macro bearish. That doesn't mean we put shorts and get liquidated just 1-10% moves. Okay, shorts were the first levels that I was hoping कि वो work करेंगे. Was this order block here? Correct. एक ये order block दिया था मैंने, and ये एक ये order block दिया था. I'm shorting market from this level only and just compounding. So reason behind this is, if you look closely, okay, if you look this level closely, we got a huge liquidation here. आपको पता है liquidations क्या होगा? Let me show you. If you see this, wait, do I have that thing on? I certainly don't. Give me 1 minute. Now it looks good. Okay. I need this flip flop. Delta. Yes. I have this chart here. If you can see this, is my screen clear? Yes, it is. नहीं, So if you can see this chart, you can clearly see कितना बड़ा liquidation यहाँ पर था. Correct. If you don't know how to read this thing, don't worry. Let me give you a very basic example. जो भी candle बड़ी दिखे, that means there is big liquidations. Delta drop हुआ इधर. Let's see. अगर अपन इस एरिया को देखते हैं, and I mark this zone right here, so you can see कितना बड़ा यहाँ पर liquidation हुआ है मार्केट का. एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग किसने पे की है? शॉर्ट्स ने. करेक्ट. अब अगर ये मूव अपन एक्सपेक्ट करते दैट यस दिस वाज द टाइम दैट मार्केट हैज़ टू गो बुलिश, देन जस्ट लुक एट दिस. द डेल्टा इज ड्रॉपिंग. करेक्ट. डेल्टा इज ड्रॉपिंग वेयर? एट दिस पॉइंट. इफ वी सी द हिस्ट्री, व्हाट डू वी सॉ हियर? इक्वल डेल्टास, हायर, and now it is lower but price is still holding above the zone. So there are multiple confluences in the trades, and if we see, we are also at pre-quarter mid plus previous month high,
एंड अबव द डेली ओपन. सो तीन चीज़ें अपने अभी यहाँ पर नोटिस करी दैट व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स. अपन ने प्रीवियस मंथ हाई को निकाला है, जस्ट अपन उधर से हिट करके नीचे आ रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वेयर वी आर डेली ओपन से ऊपर है अभी अपन. करेक्ट. लेट्स सी. So first scenario is that we make a big deviation on the data. That means something like this we will have. ये इतना कॉल करते हैं ना कंपनी वाले. ओके ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी रिप दिस लेवल. इफ वी डोंट होल्ड दिस विल कम अनसाइड दिस, देन वेयर आर माय कंपाउंडिंग्स. मतलब मैं और किधर कंपाउंड करूंगा. बस डेली क्लोज, डेली ओपन के नीचे. डेली ओपन से पहले कंपाउंडिंग में स्टार्ट अब और नहीं करूंगा. जो भी अगर यहाँ पर लॉस मेरा होगा आई विल बुक इट हियर इफ वी सी अ क्लोजिंग. इफ वी डोंट सी अ क्लोजिंग, understand the wordings, okay, I'll update you guys, but if we don't see a closing friday tak I'm waiting, I'm still taking all the losses profits जो भी हो रहे हैं. ठीक है. if I'm taking the losses, that means I have a bigger picture in my mind. What is that bigger picture? That bigger picture is will squeeze up higher, will come back in the range, will come back inside the previous month high. Then if we close below this daily open, why this daily open? क्योंकि आज न्यूज़ का डे है एंड आज मार्केट यहाँ पर खुला था एंड ऑल द कैंडल, पूरा कैंडल ने जो अभी तक किया है दैट इज जस्ट अ बुलिश मूव. इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, प्राइस इज होल्डिंग इट स्ट्रॉन्ग, डजेंट मैटर व्हाट डेल्टा इज सेइंग. इफ यू सी द प्राइस इट इज़ वेरी वेरी बुलिश. करेक्ट. यू कैन जस्ट सी इट. जैसे इसने होल्ड किया है लेवल प्रीवियस मंथ मिड को, एंड प्रीवियस मंथ मिड से सीधा है प्रीवियस मंथ हाई पर आकर रुका है. तो प्राइस स्टिल हैज़ वॉल्यूम, ओके, बट ऐसे मूव्स फेक आउट बहुत होते हैं. इफ आई शो यू अगेन द चार्ट, द मेन चार्ट. करेक्ट. इफ यू सी द डेली देर इज़ नो रीटेस्ट, देर इज़ नो रीटेस्ट. एंड ऐसे मूव्स जब भी मार्केट में आते हैं ना, देर इज़ नो रीटेस्ट, तब मार्केट एक रीटेस्ट ज़रूर देता है. कहाँ तक रीटेस्ट देता है? टूवर्ड्स द मिड लेवल. Now everything is aligning. You know how I trade this moves, and it is coming towards here. I think it will reject from here only. A squeeze up higher, get back in the range. These are my entries for shorts. Okay. Now I like to do, what is called flipping. What is flipping? Let me tell you. Just imagine if your trades are going in losses, then what I'll do, I'll cut the losses and open long immediately. Because if the idea is wrong on the shorts, then market should go long. I do these things ताकि जितने भी मैं moves capture करूँ, I capture all of them. Correct. With 1-2% अकाउंट ओनली, ऑफ कोर्स नॉट होल अकाउंट. इतना बड़ा मत करना अभी शुरू के लिए, वो गैम्बल हो जाएगा. लेकिन फिर भी अपने लिए इतना बड़ा एफ यहाँ पर बचा है. व्हाट इज एफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट. व्हाट इज एफ द स्ट्रेट अप मूव्स, द पैराबोलिक मूव्स जो मार्केट बनाता है बिना किसी रिक्लेम रीटेस्ट के. इस मूव से क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी रह जाती है. लिक्विडिटी मीन्स दैट अगर मार्केट पंप कर रहा है तो ये जो जिसने नीचे खरीदा था ना उसको बाहर निकालना ज़रूरी है. अगर ये बाहर नहीं निकला, अगर मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता रहा, तो ये तो फिर भैया धनवान बन जाएगा. इसको कभी फंडिंग नहीं, कभी फंडिंग पे करनी पड़ेगी, कभी ये शॉर्ट स्क्वीज नहीं होगा क्योंकि इसने एकदम बॉटम पे एंट्री लिए. तो मार्केट ज़रूर इन लेवल्स को रिटेस्ट करने आता है एंड हार हाई बनाता है. अगर जिसने यहाँ पोजीशन खोली वो ट्राई करेगा यहाँ बंद करे, यहाँ बंद करे, यहाँ बंद करे, पूरा तक थोड़ी लाएगा वो. दैट इज़ कि अपन उसको फिब से निकाल सकते हैं. इफ यू सी द फिब लेवल, इफ दिस इज द एक्सपेंशन, देन मिड लेवल कम्स अराउंड हियर. करेक्ट. This comes around here. If you don't hold this level, double top, RSI bearish, I'll be shorting this. This is my invalidation, these are my targets. Is this plan clear? Yo. Okay, now let's move on to the daily. And एक और चीज़ जो सेटअप मैं महीनों पहले शेयर करके बैठा था. If you look at very closely, okay, everybody is bearish, I know that, बट इट डजेंट मैटर. इफ़ यू फ्लिप लॉन्ग्स, अपन का अब अगर अपन को शॉर्ट्स को फ्लिप करना है तो अपन कहाँ से फ्लिप करेंगे उसको? एग्जैक्ट दिस पॉइंट. जस्ट लुक एट दिस. प्रीवियसली जब अपन इसके ऊपर आए थे तब भी मैंने बोला था इफ़ वी रिक्लेम दिस लेवल वी आर इनटू दिस रेंज. अगर अपन को फ्लिप करना है, ओके, अगर लॉन्ग अपन को बंद करना है एंड वी हैव टू ओपन शॉर्ट्स, तो उसके क्या इनवैलिडेशन टारगेट आते हैं? देन दिस बिकम्स आर डिविएशन, दिस होल जोन. अब इसका इनवैलिडेशन कितना सेम है? इफ मार्केट्स रिक्लेम दिस लेवल, ओके, आई एम मार्किंग टू जोन्स फॉर अ बेटर कॉन्फ्लुएंस. दीज लोज एंड दीज लोज रिक्लेम हो गया. कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज़ वेरी इजी. जस्ट लुक एट दिस. रिक्लेम को तो बस देखना है ना आपको. जैसे अब मार्केट किधर मूव किया था? इधर मूव किया था, ठीक है, इम्पल्स ये था अपने लिए इम्पल्स था, ठीक है. तो अपन इसको लॉन्ग कैसे कर सकते हैं? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये अपने पास हाइज हैं, अब ये इसको रिक्लेम करा है कि नहीं करा है?
दिस इज रिक्लेमिंग ऑफ द लेवल, करेक्ट? हाँ, तो दिस इज वेरी इजी, यू नो, अगर मार्केट उसके ऊपर दिख रहा है इसका मतलब उसने रिक्लेम कर लिया इस लेवल को, करेक्ट? लेट्स सी, आगे देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज आर डिविएशन इफ मार्केट्स रिक्लेम दिस लेवल, समथिंग लाइक दिस, ये होता है रिक्लेम। मार्केट इसके ऊपर अक्यूमुलेट होने लग जाए तो टेक्निकल भाषा में ये मतलब हो जाएगा, इफ मार्केट अक्यूमुलेट्स हियर then these are our stops, and then I'll be targeting mid range, these highs, ultimately towards there 25 22k, and then we can say a drop can happen. In a bear market, always remember guys, you can never predict the market, because if you saw here, we had a good price action and then we have a straight fall down to 18.5, ठीक है? ये भी मेरे लिए भी एक लॉस था, आई वॉज लॉन्गिंग हियर, दिस वॉज माई इनवैलिडेशन एंड वी सी अ क्लोजिंग, करेक्ट? तो ऐसे मूव्स मार्केट बे मार्केट में सब कुछ होता है, ठीक है? दिस इज द डिविएशन, जैसे इसको रिक्लेम किया मैंने, मेरी लॉन्ग वापस फ्लिप कर दी, तो आई मेड प्रॉफिट अगेन। So you have to be ready for every move that is possible in the market, correct? Now let's look at where we are right now, ठीक है? इनएफिशिएंसी क्या होती है? ये अपने पास लेग डाउन था एंड ये पूरा का पूरा रिक्लेम हो गया, देखो 50% से ऊपर। तो अगर अपने पास ये लेग डाउन है तो उसके क्या टारगेट्स होते हैं? उसके टारगेट्स कुछ इधर आते हैं, एंड दैट इज जस्ट कि वो कंप्लीट होने वाला है। What I like to trade the most is the short side, correct? अभी के लिए मैं I am bearish short term. Why I am bearish? Because if you see ना, there is multiple confluences. First is fair value gap. Second thing is, जैसे मैंने दूसरे चार्ट में आप सबको दिखाई, look at this chart. अपन जैसे इसको करते हैं, like how we trade is, we have the previous month mid, oh sorry, we have the previous month mid, reclaims the previous month mid, it bounces, these are my compounding levels, कि यहाँ से अगर bounce करता है then this becomes the accumulation, the deviation and the distribution, correct? अब अपन कहाँ पर आ जाते हैं? previous month high के आसपास, previous one high की अपन ने निकाल ली liquidity, that means the range is complete top to bottom. Now where should we go? I'll ask you guys, if we don't hold this level above this, where are we going? Down, correct? So if we are going down, what is the invalidation? Holding above the previous month's high. This accumulation, manipulation, distribution. Is this clear? How will you flip your longs if you see that market is holding above this range after the CPI 4 to 5 hours? If market is accumulating here, I'll close all my shorts, take the loss and flip it to longs. Then where are my targets? My targets are this range right here. Correct? If you mark the mid level comes around here. The range highs comes around here maybe. I can say that, correct? So this is the range that I'll be trading, the long side. Both plans are clear. Both plans are very much described. किसी को अभी तक कोई doubt है? Everything is clear, guys. Please comment. Yes, yes. Let me know, guys. Everybody. ओवर पंप्ड नहीं है वैसे और यस बट अपन को तो दोनों साइड का ही देखना है। अब जैसे ओवर पंप होता है तो ओवर डंप ही होता है ना। जैसे ये इतना बड़ा मूव था तो इसका रिटेस्ट तो 25-30% आया अभी तक, पूरा रिटेस्ट आना अभी भी बाकी है। और अगर अपन इसको थोड़ा और जूम कर देंगे, लुक एट दिस, तो इनएफिशिएंसी मार्केट में भर रखी है, ठीक है? इफ़ यू सी दैट कि वो चीज़ होगी तो वो चीज़ प्रोबेबली नहीं होगी, बट दोनों साइड आपको समझ आए क्या कि अगर मार्केट इसको रिक्लेम नहीं कर रहा देन दीज आर द स्टॉप्स। इफ इट रिक्लेम्स दिस, accumulates over this, then we'll wait for manipulation and flip it on the long side. Currently I'm still bearish that the market will do something like this, a leg up again in the range, and then I'll short it. I mean compound the short. I have been shorting market all these levels and longing also. Don't worry, that's called hedging. Is this clear? CPI पे हाँ clear Yes. है। वो See, SPX तो क्या पता पंप हो सकता है ना, जो let's see 65% probability SPX पे आ रहे हैं, ओके हाँ। ठीक है। ये सारे लेवल्स कंप्लीट, ठीक है। रेंज लोज जो मंथली का बात करी, देखो मंथली के लोज भी निकाले, हाइस तक भी पहुंच गया। आई थिंक ये 19 तारीख है, यस। तो मंथली स्टार्ट अपना यहाँ से हुआ था, मंथ ऑलमोस्ट अपन मंथ लो पे स्टार्ट हुए थे, मिड रेंज को रिक्लेम किया एंड देन वी टुक द रेंज हाइस, करेक्ट? तो अब अपना क्या पैटर्न बनता है? अगेन विल फॉलो दिस चैनल। अगर अपन इसी रेंज के अंदर गए, इफ वी ब्रेक दिस देन वी होल्ड अबव दिस, विल फ्लिप ऑल द शॉट्स इनटू लॉन्ग एंड देन टारगेट दिस। आई थिंक कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना, फ्राइडे एंड सैटरडे इज द डेट। फ्राइडे को अपन को डिसीजन मिल जाएगा दैट यस मार्केट इज वीकनिंग, and then I load up more shorts, I'll add more shorts to all my positions,
and close all the longs. After that, I'll wait till Saturday, that how market reacts on Saturday, and then I'll trade the Sunday. Why I'm trading Sunday? Because all the professional markets are closed. That means this is the moment that market will manipulate itself. It will give a fake out and then थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया आई थिंक. ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? यस, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. Yes, sir. PO3 वाला लग रहा है बस मेरे को. यस, वी आर टॉकिंग CPI के अबाउट. हिसाब बात करते हैं हाँ, हैं. वही तो था. दिस इज द डिविएशन देन. This is the हाँ. deviation for us. Fuckers are just calling me. Yes. Okay, so this is the deviation play. If you see, then this is our manipulation, and then the distribution comes around here, targeting here. Correct. Yes. Now let's move this. अच्छा, monthly levels are. अच्छा, monthly levels are top of the last month, mid level of the last month, and of course monthly levels are that only. कि monthly close, open, high, low, mid level. के अलावा कुछ नहीं. Okay, now let's talk about some setups. Okay, first I gave you guys the long. The longs have played beautifully. Her session में I was telling that I am longing the market. I'm long till here. I did here. Once I saw my setup, MSB or anything that you call it, we have the lows, we have the deviation. Once it reclaims this level above these, I was longing the market very vastly. Where were my targets? First target was here. First target was here, second was here, third was on these highs, and जैसे ही उसने उसको दोबारा reclaim किया, I booked all my positions on here. Now no longs are open in Bitcoin. And अगर आप I think आर्यन मनकरन, यस, आप दोनों अगर याद होगा आर्यन मनकरन आपको, तो कल ही अपन ने इस मूव को एक्सपेक्ट किया था. करेक्ट. सो a whole scenario I told you guys that first the Bitcoin will pump, alts will not show that much strength, and अगर देखोगे तो alt सिर्फ consolidate कर रहे हैं, लेकिन Bitcoin massive pump कर रहा है. So this is due to manipulation of the market maker. Understand the cycles. Now tell me, अगर आपने यहाँ पर buy किया होता, आप किधर बेचते? इधर बेचते? अगर लोग इधर बेचने को तैयार हैं तो उसको खरीदेगा कौन? Those who are bullish, market makers, big guys. अब वो क्यों खरीदेंगे? टेल मी वन थिंग. अगर उन्होंने इतनी अच्छी एंट्री पहले से बना रखी है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर उन्होंने पहले से इतनी अच्छी एंट्री बना रखी है तो वो यहाँ पर और क्यों खरीदेंगे? इसलिए खरीदेंगे ताकि दे कैन ट्रेड दिस, टेक मोर प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस. ठीक है, तो जब भी ऐसे एक्सपेंशंस आते हैं ना, दे बाय मोर, ताकि देयर एवरेजिंग कम्स अराउंड हियर. क्योंकि अगर इधर खरीदेंगे तो एवरेजिंग इधर आएगी, अगर इधर खरीदते तो एवरेजिंग दोबारा इधर आती. दैट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेंज हाइस पे और खरीदेंगे. फॉर एग्जांपल हियर ओनली, अगर यहाँ पर अपन ने खरीदा होता तो अपन यहाँ पर बेचते, बट वो यहाँ पर और खरीदते, क्योंकि अगर अपन बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा ना. तो दे आर बाइंग दैट थिंग, एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होती है. अगर डेल्टा भी मैं दिखाऊँ तो डेल्टा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है. डेल्टा फुटप्रिंट, एनीथिंग दैट यू वॉच, इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि ऐसी चीज़ें डेटा फॉलो ना हो या डेटा कभी मैनिपुलेट हो. वैसे डेटा मैनिपुलेट होता ही है अप्रॉक्स एवरी टाइम. रजिस्टर्ड इन कैश इक्विटी बाद में देखेंगे इसको. ओके, सो फर्स्ट लॉन्ग वाज वेरी गुड, एंड इसके साथ साथ अपन ने बहुत से अल्ट्स और बहुत सी चीज़ें लॉन्ग करी थी, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं. सो वी लॉन्ग्ड इथीरियम. ओके, वी लॉन्ग्ड इथीरियम एट अ वेरी गुड पॉइंट. द पॉइंट वाज, आई गेस इट वाज something like this, somewhere around here. If it reclaims this level, closes above the blue box, then I'll be longing, and this was the play that we played. Now where we are right now, if I show you my levels, so these are my levels, correct? What are my levels saying? जो मैनिपुलेशन का एरिया है वो कहाँ तक आता है अपने पास? 1460, 1440. Why I am saying this? Because if we see that this is the first candle, this is the first drop of the market, then these were the lows, and uske level around here aate hain. Okay, I'm not that sure. If market flips from here only, then I'll add more shorts, correct? लेकिन अगर वो फ्लिप नहीं होता है तब मेरा क्या इनवैलिडेशन है? मैं इसके ऊपर अपने सारे पोजिशंस बंद कर दूंगा. नॉट जस्ट अ विक अबव दिस. इफ इट क्लोजेज अबव दिस डेली टाइम फ्रेम, आई विल क्लोज ऑल माई लॉन्ग्स. सॉरी, आई विल क्लोज ऑल माई शॉर्ट्स.
इज दिस कर क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें देर इज जस्ट वन लेवल, दिस वन, दिस इज हाईएस्ट वी कैन गेट विदाउट रिट्रेसिंग। क्योंकि अगर अपन देखें मार्केट साइकिल्स, तो जब भी मार्केट पंप होगा ना, जब भी मार्केट पंप होगा तो अच्छे लेवल्स को ज़रूर रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा। हायर हाई और ऊपर जा ही नहीं सकता वो। सेकेंड थिंग इज द इंडिकेटर दैट वी यूज़ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम is giving us a call that market is in overbought zone. जब जब इसने अपने को सिग्नल दिया है somewhere around here, where was this signal? 19 जून को दिया था, and now it is giving signal. That means the price is very unusual. Price manipulated है, यहाँ पर price manipulated था। इससे पहले इसने कब दिया है सिग्नल? I guess around here. You can see कितना massive drop आया था, then उसने सिग्नल दिया। So if it is giving signal and the signal is strong, it is not that strong. वी आर स्टिल 75 के आसपास हैं। 80 तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे 80 पर ये था, पहले 75 पर टैप हुआ। नाउ आई एम वेटिंग, यू नो, आई एम वेरी पेशेंटली वेटिंग दैट प्राइस deviates this levels, comes below. This is my setup, deviation, get back in the range, and then we can target all these levels again. Okay, this is the most profitable thing that you guys can ever trade. Is this clear till now? Okay, clear. Yes, okay. तो इसके क्या टारगेट्स आते हैं? इसके टारगेट्स ऑफ कोर्स रेंज लोस तक आई एम टारगेटिंग दैट नाउ द मार्केट विल क्लियर दीज रेंज लोस, $800-900 का जो होता है, एंड देन आई बाय सम स्पॉट्स हियर। अच्छी स्पॉट एंट्री हो सकती है यहाँ पर, करेक्ट। एंड उसके हिसाब से अपना जो है 3 फेजेस PO3 होता है सेटअप। तो दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द मार्केट। अब मैनिपुलेशन कहाँ तक जा सकता है? इधर दिस 0.5 और highest, I think, yep, I think this is the highest, you know, it manipulates here. Once it start coming below the level, I'll be shorting this, targeting the mid level and the range lows, and if it again breakouts retest, then I'll add more and then target the lower ranges. वैसे बिटकॉइन पर मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ठीक ठाक बुलिश हूँ, बिकॉज इफ़ वी हैव यू नो दिस, यू सी दिस, आई मार्क दिस, क्योंकि जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, सॉरी, जब मार्केट ने न्यू स्ट्रक्चर बनाया था, लेट मी, जब पैराबोलिक मूव किया था उसने, ये जब तक रेजिस्टेंस था, एंड जैसे ही उसको फ्लिप किया मार्केट ने, वो सपोर्ट बन गया। तो अगर अपन इस वाली रेंज को रिक्लेम कर लेंगे ना, देन दैट इज़ वेरी बुलिश फॉर अस, देन वी कैन ट्रेस द मिड लेवल अबव। क्लियर? यस, जहाँ भी मार्केट दिखे ना, यू जस्ट हैव टू लॉन्ग और शॉर्ट द मार्केट, करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। Now let's look at the relation of BTC DOM. Okay, if we look at BTC DOM, what it is doing is, जो सुबह भी मैंने चीज़ बताई थी, just see this, you know, we are just making lower lows, the price is moving higher highs, then we are still in a consolidation and still the RSI is higher high. ऐसे सिनारियो में दो ही चीज़ें होती है, either the price is just consolidating and trapping us and it will go down, which is less likely, क्योंकि वो I think 4 hour में, yes, 4 आवर में जस्ट वो ओवरबॉट जोन में गया था, एंड देन वो स्टार्ट ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। तो अगर अपन इस पूरे रेंज को ले लें कि अपनी फाइनल रेंज है, तो यस, ये इससे ऊपर निकल रहा है। अगर ये इसके ऊपर रिक्लेम कर लेते, देन आई एम टारगेटिंग दिस। आफ्टर दैट इफ इट रिक्लेम्स दिस लेवल ऑल्सो, देन विल सी अल्ट्स ब्लीड, एंड बहुत अच्छा सा वो करेंगे, एंड देन बिटकॉइन विल कंसोलिडेट, अल्ट्स विल ब्लीड, यस। Third thing is Dixie. I still believe Dixie can go lower. Yes, there are possibilities that yes, Dixie can go lower. Let's mark the levels of Dixie. Yes. So I guess message levels self-explanatory, but if we still see now, we have this region here, you know, 102, 101, 100. 100 is the last level जिससे अपन फिर flip कर सकते हैं, क्योंकि if you closely watch this and I drop this here, correct, if I drop this line here, you can see the main resistance जो weekly time frame, monthly time frame पे जो एक main resistance है, जहाँ पर ज़्यादा candles close हुए हैं, वो ये वाला region ही है। If we take support from there, then we can go higher. I'm targeting the range highs, but उसके लिए अपने को कहाँ से वो flip करना पड़ेगा, क्योंकि yes, it is a good zone to flip, अपन अभी भी एक अच्छे सपोर्ट पर है, बट इफ़ यू सी कि जिस मूव पे फॉल हो रहा है ना,
लिक्विडिटी निकाल के फॉल हो रहा है, दैट मीन्स पहले इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाना पड़ेगा, डबल बॉटम, समथिंग लाइक दिस, देन इट विल गो हायर. Then yes, let's see how it plays out. I still think that, you know, EDX, what is this? BNB. Good levels are in good levels. Okay, so the Dixie plan is very simple. That still, you know, I am macro bearish in this, cause अगर अपन ने इसको भी hold नहीं किया, then I think we'll come down something like this and then we can start pumping. Correct. आज के डेटा पे ही सब कुछ डिपेंड है. 7 बजे आई गेस डेटा आएगा IST में. Let's see what happens, what comes out and how we play that move. Everything depends on that. लेकिन अगर अपन 4 hour पे इसको देखते हैं ना, price is making equal lows but the RSI is moving. The RSI is making higher highs. Correct. This is also a bullish sign for Dixie. कि अगर Dixie pump हो रहा है, December lows, January open. And everything is aligning, I guess. Correct guys. आप ये सब समझ पा रहे हो क्या कि कैसे सब चीज़ अलाइन हो रही है, कैसे सब चीज़ें प्ले हो रही है. करेक्ट. क्योंकि अगर ये रिक्लेम कर लेगा ना दिसंबर के लोज को, then this is the deviation play. Then we can target this and the upper ranges too. Correct. Very simply I am telling everything. My main targets are, you know, January open and the mid level of December. Let's see how we play that. Everything depends on the data. Now let's see any coins that you are trading guys. बाकी जो trades I think अभी तक मैंने दिए हैं, they are 100% correct. You need the data, I can show you the data. Okay, let's see. LDO का एक बहुत प्यारा अपन ने मूव कैप्चर किया था. If you guys remember, it was over 100% pump without even doing anything. Total it was above 100. 20. Above 100. अटक गया ये. Total it was above 100 but our target was $2, so it got achieved. Sold short check करना. You could have shorted this. Correct. कल ही अपन ने इसकी बात करी थी, याद हो तो आपको. So this is the MSB, you know, this is the market structure break. And जैसे उसको hit करता है, it quickly falls. Let's see यार. I don't think so you should get into alts अभी. Ethereum को एक बार देखें, न्यूज़ आने देते हैं. Don't expose yourself, don't expose your account to over leverage things. Correct. अगर over leverage things से आप अपने अकाउंट को expose करोगे ना, तो sooner or later you are going to get wrecked today or tomorrow. क्योंकि 2-3 पोजीशन अच्छी जाएगी, अच्छा 30% बनाओगे एंड देन एक ही पोजीशन में 40% लॉस करके बैठ जाओगे. rather than making losses, just don't trade that day. Correct. Do something else, do paper trading. There are hundreds and different kinds of markets, you can trade them. But sold short was good here. If you see, you know, the setup is also there. We have highs, the deviation, the supply and the short का टारगेट भी एकदम इधर से ही ये फ्लिप होता है. बस लेवल्स अगर आपको मिल जाए ना कि अच्छे बंदे के, तो सिर्फ उनको देखकर ही. अच्छा, कल ही अपन ने ड्रॉ करे थे, इफ यू गाइस रिमेंबर. BNB ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. BNB लिटरली आउट परफॉर्म द मार्केट. सब यहाँ पर बेरिश हो रखे थे कि ये चीज़ जो है नीचे टूटेगी और ये बबल बस्ट हो जाएगा. बट यू कैन सी, यू नो, हाउ CG प्लेज दैट. एंड अगर एक चीज़ इसको बताऊँ मैं, अगर अपन इसका भी डेल्टा देखते हैं ना, यू कैन सी कितने बड़ी बड़ी यहाँ पर स्पाइक्स आई थी. ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो बेरिश थे या जो बुलिश थे, वो लिक्विडेट हुए थे यहाँ पर. करेक्ट. लॉन्ग्स गॉट रेक्ट एंड देन द अगेन लॉन्ग स्टार्टेड बिल्डिंग. तो अगर एक साइड से, वही सीसो वाला एग्जांपल, अगर एक साइड से उतर जाएगा, दूसरे साइड मार्केट चला जाएगा. जैसे ही उसने इसको रिक्लेम करा ना, कैसे भागा है देखो.
शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स रेक्ट हुए हैं सारे के सारे. यू गाइस कैन सी अब लॉन्ग को रेक्ट करने का टाइम आ गया है. लेट्स सी वो किधर से रेक्ट होते हैं. आई एम स्टिल बुलिश के इट विल क्लियर दीज हाइज. दिस इज द सॉरी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट. करेक्ट गाइस. अभी तक सब समझ आए. इथीरियम का PO3 समझ आ गया. तो यस एक चीज पूछना था, जैसे बोलो. CPI अभी एक्सपेक्टेड है 6.5 के, अगर नीचे आ जाएगा तो वो पंप है बेसिकली, तो वो सिर्फ मैनिपुलेशन भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट तो जैसे हम लोग अभी प्ले करने का बहुत अच्छा खासा सोच रहे हैं, तो पूरा आज हो सकता है कि थर्सडे CPI के बाद जो 6.5 के अगर नीचे आ जाता है तो पंप हो जाए मैनिपुलेशन फेस के लिए, जो भी इथेरियम का ऊपर का टारगेट है वहां तक ही सही. मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. यस इट कैन हैपन. एवरीथिंग कैन हैपन. डाटा पे सब डिपेंड करता है. बट जैसे अपन ने प्रीवियसली देखा है ना कि कैसे बिल्डअप होते हैं मार्केट में. एक दिन पहले हाँ, मार्केट बुलिश होता है एंड देन वो फ्लिप होके बेरिश हो जाता है. कई बार अपन ने देखा. जैसे यहाँ पर भी ये पूरा बिल्डअप था एंड देन मार्केट क्रैश्ड. देख सकते हो कितना नीचे गए. फिर अपन ने इसको लॉन्ग अब किया. 6.5 आ गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तब तो फिर 6.5 60 वाला तो पे तो दोनों साइड जाएगा बुलिश मार्केट. डाइवर्जेंस दे रहा है. अबव कौन दे रहा 6.5 है आ गया बुलिश तो डाइवर्जेंस. बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस तो दे रहा है डिक्सी. लाइक उसका RSI हायर हाई बना रहा है हाँ और हाँ वही वैसे तो वो अभी लोअर जस्ट लो अपन ने बना वही रहा चीज़ क्लियर करा. है. यस इफ तो यू सी ट्रेड तो दिस ले ही ना. सकते हैं मतलब वो टॉप पे. हम्म. ऑफ कोर्स मैन व्हाई नॉट. The thing is how you manage your risk. How much are you willing to lose. Correct. Because you can't be right every time. You have to accept that thing. If you are right every time then it's not easy to make money in these markets. You have to be over smart. And इस चीज़ की भी अपन ने बात करी थी if you remember कि इस वीक की क्लोजिंग के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा, रेड कुछ ऐसे आ जाएगा, then we can play the short. If we see the EMA is also how it is rejecting, you can see the data. Every time it has come near this EMA. So सब फ्राइडे सैटरडे पे डिपेंड करता है. ठीक है. आज कौन सा वार है. थर्सडे है क्या. हाँ थर्सडे. तो फ्राइडे सैटरडे इज द डिसाइडर दैट हाउ मार्केट इज गोइंग टू प्ले इन द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ आई वुड से. एंड फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ की. लेट्स सी. आई थिंक आज हाईली मैनिपुलेटेड होगा मार्केट. इफ़ यू आर नॉट इन एनी ट्रेड्स आई वुड सजेस्ट कि आज आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करो. इफ़ यू आर ट्रेडिंग, इफ़ यू आर ऑलरेडी शॉर्ट और लॉन्ग, then if you can't manage the risk then you can close the positions. But my advice is try trading in these conditions also. अगर ऐसी conditions में trade नहीं करोगे then you will never know that what is your capability, what is your niche and everything. Correct. You have to expose yourself रिजल्ट्स to के risk बाद also ट्रेड कर sometimes. सकते हैं. इसके बाद रिजल्ट आने के बाद मतलब मीटिंग का. रिजल्ट आने के बाद मार्केट कूल डाउन होता है. जैसे खुद सोच के देखो, जब आप पेपर देकर आते हो तो क्या घर आते ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हो. पहले रेस्ट लेते हो ना 1-2 घंटा, 2-3 घंटा, 3-4 घंटा. तो उसी तरह से मार्केट को भी रेस्ट दे दो, उसके बाद ट्रेड करो. बाकी एवरी कॉइन एवरी सिंगल कॉइन जो अपन ने काफ़ी टाइम से अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है. इफ़ यू नो हाउ टू प्ले द लेवल्स यू कैन जस्ट फ्लिप, जस्ट लाइक फ्लिपिंग द बर्गर्स यू कैन फ्लिप दीज लेवल्स. करेक्ट. किसी को लेवल्स ऐसे मैं इधर ही पोस्टेड रखता हूँ. यू कैन जस्ट कॉपी दोज लेवल्स. बाकी यू कैन सी हाउ एवरीथिंग इज रिस्पेक्टिंग. जब सुशी यहाँ पर था देन वी सेड दैट यस इट शुड क्लियर दिस 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 एंड एवरीथिंग इज जस्ट प्लेइंग वेरी क्विक. आपको बस सही टाइम पर सही जगह होना एंड यू हैव टू फॉलो द थिंग. जैसे आज सुबह सुशी यहाँ पर था. नो आई सेड टू आर्यन एंड मनकरण दैट लुकिंग गुड, दे शॉर्टेड दिस एंड दे कैप्चर्ड दिस मूव. So this just कि उनको भी ये चीज़ सेम चीज़ दिखी. अब now tell me, is this not a profitable setup? We have the highs, the deviation, the supply, and the market is just following what we are doing. Correct? You can see these are just some small examples. Everybody is making money, I would say. And confluences भी कितने अच्छे हैं देखो अपने पास. अब यही है, आप ट्रेड में कूदते कब हो, क्या आपका रिस्क है, कितना एक्सपोज्ड हो आप. वन मोर थिंग, कल अपन ने एक बहुत ब्यूटीफुल मूव कैप्चर किया. I will not tell you where I got that news early, but yes, there were news and I got that news very early from some good guys. And I was longing the market when market was here. I was longing the market when market was here. I compounded my position here and then played this move. And जब मैंने कॉल दी थी, जब अगर आप देखोगे मैंने कितने बजे कॉल दी थी, तो तब मार्केट 12.5 मतलब इस लेवल पे था. ये कैंडल जस्ट बनी थी. तो अपन ने क्लियर 1 घंटे में 2 घंटे में ओवर
without even T20 losing leverage we caught a 30% move, and with leverage almost 300%, almost 250%. अलीको का प्रीबोर्ड है। अरे भाई अभी शायद सबके ही पेपर्स चल रहे हैं ना। आई विल जस्ट पोस्ट चार्ट अब इसके बाद से ना, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेट्स सी हाउ वी प्ले। आई विल बी ट्रेडिंग, ऑफ कोर्स आई विल बी ट्रेडिंग, बट नॉट दैट। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओपी भी अगर अपन देखें सो यस, ओपी का यू कैन यू नो, you want to follow me, this is what I will take if market hits something like this, I'll take the entry। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा कर मत सो जाना, मार्केट रिप करके नीचे आ जाएगा। वेट फॉर द रिप एंड देन द reclaim and then I'll short this। I'm giving you fucking trades for free, just play them, just be wise enough। LDO भी बहुत अच्छा गया था, $2 was the target। I'll go ape। कोई कॉइन हो तो अभी बता दो। सब अभी ना ओवरबॉट जोन में है। BNX ओके, लेट्स लुक एट BNX। मैंने सुना है अभी बहुत बड़ा डंप दिया था। इसमें स्टेबल बहुत स्टेबल रहा है ये पूरा बेयर मार्केट। ये एंड में ओहो आगे बिल्कुल डंप दिया। हाँ क्या स्टेबल रहा है क्या? अप्रैल से लेकर ये जो है नवंबर तक एकदम स्टेबल था, उसके बाद VCs ने बेच दिया अपना स्टेक एंड यू कैन सी द डंप। आई थिंक ये फैन ईटर ने ये ट्रेड लिया था। 71% का इसमें ड्रॉप था एंड देन मार्केट ने जब रिकवर किया, जब रिकवर बहुत अच्छे करते हैं जब भी कॉइन्स होते हैं ना। ऐसे मत करा करो ऐसे कॉइन्स ट्रेड, बट स्टिल यू कैन इफ़ यू शॉर्ट मत करना, ठीक है मन करन इसको, क्योंकि देखो आप किसको शॉर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं जस्ट एक दो कॉइन्स थे, मैं एक BNX और एक YFI, ये दो कॉइन्स थे देखते हैं। YFI तो अप्रोक्सीमेटली कुछ $5-6 का है। हाँ वाईफाई आई नो, वो थोड़ा इसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस तो है। $95,000 तक गया हुआ है। वही ज़्यादा सप्लाई नहीं है ना इन कॉइन्स की। 25,000 है सर इसकी। हाँ सिर्फ 25,000, यस वेरी करेक्ट। तो फिर इनको जो खरीद कर बैठे हैं ना, दे ट्राई कि वो उनको सेल ना करे। एंड आप देख सकते हो तो भी ये ओवर द मंथ्स कितना गिरा है। इट जस्ट कि उसने रिटर्न्स बनाए नहीं है अभी तक। लेट्स सी बुल साइकिल में कैसा करता है। एक बार तो ये कब तक कहाँ तक पहुँच गया था, 10,000, बहुत बहुत खूब डॉलर तक पहुँच गया था। नहीं, $95,000 तक पहुंचा हुआ है। हाँ $95,000, यस। LTC का एक बहुत अच्छा अपन को सेटअप मिलेगा, ठीक है। इसके अपन काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे। अगर आपने सेशंस ढंग से सोच समझ के लिए और दूसरा काम नहीं करा तो याद होगा जब मार्केट इधर था ना, then some of you were saying that we are shorting the market। I said one thing, that let the market come to our level, then we'll short। अब ये जो लेवल है ना, look at this where it is coming। This is the most important pivot, जहाँ से मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा and will reach higher highs, something like this, clearing this, or will flip as predicted, जैसे अपन अभी तक सोच रहे हैं, that yes market will flip this zone and will go down lower। and lower के टारगेट जैसे अपन हमेशा देखते हैं, जब जब LTC पंप होता है ना, उसके 2 से 3 दिन बाद बिटकॉइन डंप होता है। तो देखो LTC कब से पंप होना चालू हुआ है, डंप आया नहीं है अभी तक। बी रेडी फॉर द डंप। जैसे अगर देखें, पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप, पंप एंड देन डंप। यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट दैट द डंप इज कमिंग। LTC का भी अच्छा सेटअप है एकदम। You can manage your risk according to you। I'm not a financial advisor, everything as I say is just my view of the market, not a financial advice। I'm recording these things, any of you fuckers try to put a case on me, then I can just put this। इंडिया में केस बुड्ढे हो जाएंगे। Oh भाई, वाह क्या हरा पीला नीला सब दिख रहा है रंग। अच्छा बाय द वे, आज मैं एक बहुत बढ़िया RSI लेकर आया हूँ। You guys will enjoy it, but I will not show it to you guys। ये तो गलत है, ये तो आम दिखा के बोलने का, खिलाऊंगा नहीं। बहुत प्यारा RSI है। It is like both side RSI। What the fuck? क्या लिख रहा ऊपर भाई से नीचे से। वेस्ट बंगाल
चलो एक झलक दे देता हूँ, ठीक है तुमको. इफ यू सी दिस, यू नो, दिस इज द RSI. अच्छा मायला. It is known as advanced fib. You can see the levels. Boom, boom, boom. Very enhancing and very life changing RSI. Good RSI, I mean. ठीक है, और कोई कॉइन का एनालिसिस है तो बता दो. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. SPX रह गया. SPX, लेट्स लुक एट SPX. ओके, अपना ये भी था PO3, अपन इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेट्स सी हाउ इट प्लेस. SPX भी अगर आप देखोगे ना, इट इज़ लिटरली जस्ट यू नो पंपिंग. जब भी ऐसे स्लो ग्राइंड्स करता है ना ये, एंड डेल्टा ऐसे टाइम पे डेल्टा, हाउ अबाउट शिट कॉइन, इफ़ यू सी यू नो ऐसे मूव्स में डेल्टा, चलो डेल्टा को नहीं समझाता. अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन की भाषा बोलूँ, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वो ऐसे ऊपर जा रहा है, अब ये चीज़ मेरे को बताओ, ये क्या करेगा? नीचे आ जाएगा ना. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है उसमें. If you see this, correct, if you see this, what is this? The market is losing its volume. Why I am saying this? Let's see. जैसे गीगा चैट, जैसे ये देखो, यहाँ पर सेम मूव है मार्केट का. मार्केट इज स्लोली गोइंग अप विदाउट इवन रिट्रेसिंग, एंड देन क्या होता है? बिग गैप डाउन, बूम, ऑल द गैप इज रिकवर्ड. एवरीथिंग इज लाइनिंग अप. अब बस न्यूज़ को प्ले होना है. अगर नहीं प्ले होती विल मेक लॉसेस, अगर प्ले होती है विल मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. आई शेयर एनीथिंग यू नो, जब भी ट्रेड क्लोज होगी, ओपन होगी, डोंट केयर. क्योंकि अगर कल वाला जो मैंने, क्योंकि कल वाली आई थिंक सब जगह डाली थी मैंने. लेट मी चेक. यस, तो yesterday you know the 300% move you should have captured if you stay active. If you don't stay active, then that is up to you. Okay, I think everything is clear now. सैंडबॉक्स को देख लेते हैं एक बार. माना है उसका आई थिंक. हाँ, तो हाँ, माना बॉटम में अच्छा था, ठीक है. बुलिश डाइवर्जेंस भी दे रहा था. आई सॉ दिस कॉइन एंड आई वाज नॉट यू नो कि जब तक ये इसको रिक्लेम नहीं करता, बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना. फर्स्ट इसके इनिशियल लोस कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आते हैं ना. जब तक ये इस लेवल को रिक्लेम नहीं करेगा ना, मैं इसमें घुसूंगा भी नहीं. दिस इज जस्ट यू नो कि अपने बड़े बड़े लोग पैसा निकालने के लिए उसको 10-20% पंप करते हैं और फिर खुद की जो लॉन्ग्स होती है उनको बुक कर लेते हैं, शॉर्ट्स को बुक कर लेते हैं. देन अपन इसमें फंस जाते हैं. जब तक ये इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता, आई विल नॉट इवन टच दिस कॉइन. करेक्ट. यस, यू कैन, इफ यू हैव कॉट द बॉटम यू नो, अगर आपको यहाँ पर कुछ पता लग गया है मैस मार्केट इस पंप, देन यू कैन कैप्चर द 50% मूव. बट उसके लिए अच्छे कॉइन्स भी अपने पास. जैसे LDO था, ठीक है. LDO वाज एट बॉटम, इट वाज नॉट एट कि वो बॉटम पे नहीं है. अगर बॉटम कैच करना है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम कैच करो. यहाँ से उसने दे दिया 150, 250, 300% रिटर्न. आई वुड लाइक कि मैं ऐसा अच्छा कॉइन ट्रेड करूँ रादर देन, इट इज़ एन AI कॉइन बाय द वे, ठीक है. सारे AI कॉइन्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. जैसे CTXE की अगर मैं बात करूँ, यू कैन सी this is where I posted all profits book, then again it come down to the 6-1 level and then again flipped. XRP is also making bearish divergences, losing its volume. Let's see how it plays. Either a one more push up, one more leg up, and then comes down everything, or it just falls. Correct? There are just two scenarios. If it has to go bullish, I'll flip my shorts into longs above the green zone. Above the green zone means if it stays, reclaims this is my invalidation, this is my targets. I'm a very one-to-one trader. I don't see anything rather than you know the setups that I trade and everything. OP तो नहीं लिया अभी तक. There are currently, let me tell you, there are currently 3, 4, 5, 6, 7 trades are going on. Sushi short, Atom short, BTC short, Ethereum short, BTC short, Ethereum short, LTC short. I think yes. Okay, I think everything is clear now. Now I have to make one small announcement also. Okay, so I have started a challenge, very basic challenge. The challenge is going really good. So the challenge name is drum roll था ये, ठीक है. The challenge name is $50 challenge. Now what does this challenge mean and why you know मेरे को ये करने की क्या ज़रूरत थी? Let's understand it from the basics. Correct. First of all, yeah, I was just free and started to do